Dear students, welcome to e-learning classes of Second Hearts. Today is your accountancy turn, and in this lecture I am going to complete the third topic of chapter 5, accounting ratio. In this lecture I am going to cover your topic turnover ratio. Turnover ratio is the third topic of this chapter. In this there are four types of turnover ratio. The inventory turnover ratio, trade receivable turnover ratio, trade payable turnover ratio, and working capital turnover ratio. Now we see number one, inventory turnover ratio. This ratio indicates the relationship between the cost of revenue from operation during the year and average inventory kept during that year. It means inventory turnover ratio is equals to cost of revenue from operation or cost of goods sold upon average inventory. The answer of turnover ratio is always comes in times. Number one, cost. Now see what is cost of revenue from operation or cost of goods sold. It can be calculated by two ways. Number one, cost of revenue is equals to opening inventory plus purchase plus carriage plus wages plus other direct charges minus closing inventory, or cost of revenue from operation is equals to revenue from operation minus gross profit, or revenue from operation plus gross loss. Whatever is given in the question, if opening inventory, purchase, carriage, wages are given, then cost of revenue from operation will be calculated from that formula. But if in the question revenue from operation, gross profit or gross loss is given, then cost of revenue from operation will be calculated by the second formula. Now see number two, trade receivable turnover ratio. This ratio indicates the relationship between credit revenue from operation and average trade receivable during the year. Trade receivable turnover ratio is equals to credit revenue from operation, credit sales upon average trade receivable. It is in times. Trade receivable includes, now see second one beta, trade receivable turnover ratio. Trade receivables turnover ratio is equals to credit revenue from operation or credit sale upon average trade receivable. It is also in times. Trade receivable includes debtors and bills receivable. Trade receivable का मतलब debtors और bills receivable दोनों होता है बेटा. Average trade receivable are calculated by adding the trade receivable at the beginning of the period as well as trade receivable at the end of the period. Means average trade receivable is equals to opening trade receivable plus closing trade receivable upon 2. ठीक है. और अगर आपके जो है वाइल कैलकुलेटिंग दिस रेशियो, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज़ नॉट डिडक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसेबल. ये ट्रेड रिसेबल आपकी बुक वैल्यू पे लेते हैं, इसलिए इसमें से अपने वो बैड डेट से वो माइनस नहीं होता है. तो ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसेबल. एवरेज ट्रेड रिसेबल इज ओपनिंग ट्रेड रिसेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसेबल अपॉन 2. अगर आपकी डेटर्स गिवन है, ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग बिल्स रिसेबल गिवन है, क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग बिल्स रिसेबल गिवन है, तो ट्रेड रिसेबल, एवरेज ट्रेड रिसेबल विल बी ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसेबल माइनस क्लोजिंग डेटर्स माइनस क्लोजिंग बिल्स रिसेबल. इज इट क्लियर बेटा? क्योंकि ट्रेड रिसेबल में वो डेटर्स एंड बिल्स रिसेबल दोनों आते हैं. द ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस, दिस रेशियो इंडिकेट्स द स्पीड विद इन विच अमाउंट इज कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसेबल. इससे हमें पता चल जाता है कि कितनी अमाउंट हम कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द ट्रेड रिसेबल. द ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशियो इज क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसेबल. अब क्रेडिट सेल कैसे कैलकुलेट होती है? टोटल सेल इज इक्वल्स टू होता है क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल. तो अगर आपको क्रेडिट सेल क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो टोटल सेल में से कैश सेल को माइनस कर दीजिए, या टोटल रेवेन्यू में से कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को माइनस कर दीजिए. यू विल गेट क्रेडिट सेल और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. Now see next one beta, trade payable turnover ratio. Trade payable turnover ratio, this ratio indicates the relationship between credit purchase and average trade payables during the year. Trade payable मतलब it means ये payable को calculate कर रहा है, तो ये purchase के पर depend करता है. तो trade payable turnover ratio is equals to net credit purchase upon average trade payable. तो trade payable includes creditors and bills payable. Trade payable में दोनों items आते हैं, creditors and bills payable. तो average trade payable आपका वही हो जाता है बेटा, average trade payable is equals to ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल अपॉन 2. ठीक है, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स अपॉन 2 एवरेज ट्रेड पेबल हो जाता है बेटा. तो एवरेज ट्रेड पेबल में अगर आपके क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल गिवन है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों, तो एवरेज ट्रेड पेबल विल बी ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग ट्रेड बिल्स पेबल माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर्स माइनस क्लोजिंग बिल्स पेबल अपॉन 2. ठीक है. एंड टोटल परचेज में से नेट क्रेडिट परचेज अगर गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो सेम बेटा टोटल परचेज इज इक्वल्स टू कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज. तो टोटल परचेज में से कैश परचेज को माइनस कर दोगे तो यू विल गेट क्रेडिट परचेज. नाउ सी एवरेज पेमेंट पीरियड. Trade payable turnover ratio could be converted into average payment period, which indicate the period which is normally taken by the firm to make payment. Average payment period वो period होता है जिसमें आपका कोई firm जो है अपने trade payables को pay करती है. Average payment period is equals to 365 upon trade payable turnover ratio. Now see next one beta, working capital turnover ratio.
वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेटा क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको नेट सेल्स भी बोलते हैं. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल्स टू, इट इज नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. ये नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस सेल्स रिटर्न, या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस सेल्स रिटर्न कर देंगे तो नेट रेवेन्यू गेट हो जाएगा. या फिर आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस लॉस इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. ठीक है. ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंट दिस रेशियो इज ऑफ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंस इन नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वेयर करंट एसेट्स प्ले अ मेजर रोल इन जनरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. ठीक है. इस रेशियो के थ्रू हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारी काम फर्म में कितना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हो रहा है. नाउ सी न्यूमेरिकल्स. तो मैंने आपको 4 फॉर्मूलाज बता दिया. दैट इज number one is inventory turnover ratio, number 2 trade receivable turnover ratio, number 3 trade payable turnover ratio, and number 4 working capital turnover ratio. Now see question number 48. Calculate inventory turnover ratio from the following: purchase 3,46,000, return outward 10,000, return carriage inward 15,000, carriage outward 20,000, wages 25,000, salary 40,000, rent 36,000, opening inventory 72,000, closing inventory 88,000. तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको कैलकुलेट करना है. कैरेज आउटवर्ड, सैलरी एंड रेंट विल बी इग्नोर्ड एज वेल कैलकुलेटिंग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. नाउ सी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. इसका फॉर्मूला है. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस कैरेज इनवर्ड प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. ठीक है. तो ओपनिंग इन्वेंट्री 72,000 प्लस नेट परचेज 3,36,000 प्लस कैरेज इनवर्ड 15,000 प्लस वेजेस 25,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री 88,000. तो इट इज़ 3,60,000. एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2. तो ओपनिंग इन्वेंट्री इज 72,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 88,000, 72,000 प्लस 88,000 अपॉन 2. तो एवरेज इन्वेंट्री इज 80,000. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू 3,60,000 अपॉन 80,000. इट इज़ 4.5 times. Now see question number 52. Calculate inventory turnover ratio and average age of inventory from the following: opening inventory 54,000, closing inventory 66,000, revenue from operation is equals to 5 lakh, gross profit ratio 40% on revenue from operation. आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री निकालना है. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल्स टू सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. ये फॉर्मूला सबको पता है. सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? 40% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है. तो हमने 5 लाख का 40% कैलकुलेट कर लिया, तो इट इज़ 12 लाख. तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 5 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल्स टू 3 लाख. एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, 54,000 प्लस 66,000 अपॉन 2. तो एवरेज इन्वेंट्री इज 60,000. Average inventory is equals to opening inventory plus closing inventory upon 2. It is 54,000 plus 66,000 upon 2. It is 60,000. Now see inventory turnover ratio. Cost of revenue from operation upon average inventory 3 lakh upon 60,000. तो inventory turnover ratio is 5 times. Average inventory का फॉर्मूला होता है बेटा days in a year, number of days in a year upon inventory turnover ratio. Number of days in a year 365 days होता है. तो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू डेज इन अ ईयर अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. तो इट इज़ 365 अपॉन 5. तो 73 डेज आ गया एवरेज इन्वेंट्री. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 57 बेटा. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख, एवरेज इन्वेंट्री 55,000, रेट ऑफ ग्रॉस लॉस ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 10%. यहाँ ग्रॉस लॉस हो रहा है बेटा 10% है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का. सी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख, ग्रॉस लॉस 10% ऑफ 4 लाख 40,000. तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस. तो 4 लाख प्लस 40,000 इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख 40,000. तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री 4 लाख 40,000 अपॉन 55,000. तो इट इज़ 8 times. Question number 61. Revenue from operation sale 7 lakh, gross profit 1,40,000, inventory turnover ratio 7 times. Find out the value of closing inventory if closing inventory is 16,000 more than the opening inventory. आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री 16,000 मोर देन है ओपनिंग इन्वेंट्री, हमें यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री भी नहीं गिवन है, ITR गिवन है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 7 times गिवन है. तो सी बेटा
हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. तो इट इज़ 5,60,000. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है हमारे 7 है. तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू 5,60,000 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की जगह हमने 7 रख दी, पोस्ट कर दिया. तो एवरेज इन्वेंट्री निकल कर आ गई हमारी 80,000. Now closing inventory is equals to 16,000 more than opening inventory है. Let opening inventory is equals to x. तो closing inventory क्या हो गई, x plus 16,000. तो average inventory is opening inventory plus closing inventory upon 2. तो average inventory 80,000 कैलकुलेट हो गया है. तो 80,000 में आ गया तुम्हारा x plus 16 upon 2, opening inventory x, closing inventory x plus 16,000 upon 2. तो 80,000 into 2 is equals to 2x plus 16,000. तो 1,60,000 minus 16,000 कर दिया आपने, तो 2 is equals to 2x. तो x is equals to 1,44,000 upon 2. तो it means opening inventory is equals to x है, तो it is 72,000. Closing inventory x plus 16,000, 72,000 plus 16,000, it is 88,000. Now see beta, next question number 65. Determine the amount of revenue from operation from the following particular. Opening inventory 40,000, inventory turnover ratio 6 times, gross profit 20% of revenue from operation. You are informed that closing inventory is 2 times in comparison to the opening inventory. Now see solution beta. Inventory turnover ratio, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री होता है. तो इन्वेंट्री टर्नओवर में गिवन है आपको 6 टाइम्स. तो एवरेज इन्वेंट्री इज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2. ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 80,000 अपॉन 2, तो इट इज़ 60,000. अब आपने इन्वेंट्री टर्नओवर में 6 पोस्ट कर दिया. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें नहीं पता है, अपॉन 60,000. तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 3,60,000. ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. लेट कर लिया हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल्स टू एक्स. तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया, एक्स इंटू 20 अपॉन 100, इट इज़ 2x अपॉन 10. तो ग्रॉस प्रॉफिट इज 2x अपॉन 10. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट. तो x इज इक्वल्स टू 3,60,000 प्लस 2x अपॉन 10. तो x में से 2x अपॉन 10 को माइनस कर दिया इज इक्वल्स टू 3,60,000. और जब आपने इसको सॉल्व करा तो x की वैल्यू आ गई आपकी 4,50,000. दैट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 4,50,000. Now see question number 72. Calculate debtors turnover ratio from the following information. Credit sale 22 lakh, cash revenue received from debtors 20 lakh 40,000, discount allowed 40,000, sales return 60,000 and opening debtors आपको 4,70,000 given है. See, डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर्स. नेट क्रेडिट सेल इज क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न. 22 लाख गिवन है क्रेडिट सेल और सेल्स रिटर्न 60,000 है, तो 21,40,000 इज नेट क्रेडिट सेल्स. एवरेज डेटर होता है ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स अपॉन 2. क्लोजिंग डेटर्स हमारे पास गिवन नहीं है. क्लोजिंग डेटर इज तो हमने क्लोजिंग डेटर का फॉर्मूला लगा दिया. क्लोजिंग डेटर इज इक्वल्स टू ओपनिंग डेटर प्लस क्रेडिट सेल माइनस कैश रिसीव माइनस डिस्काउंट अलाउड माइनस सेल्स रिटर्न. जो जो वैल्यूज़ गिवन है उसमें से आपने इसको माइनस कर दिया. ये देखो आपको डिस्काउंट अलाउड गिवन है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स गिवन है, आपने उसको माइनस कर दिया इसमें से. तो क्लोजिंग डेटर्स आ गए ओपनिंग डेटर्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस कैश रिसीव माइनस डिस्काउंट अलाउड माइनस सेल्स रिटर्न. तो क्लोजिंग डेटर इज़ 5,30,000. एवरेज डेटर इज ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स अपॉन 2. तो एवरेज डेटर इज 5 लाख. तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज 21,40,000 अपॉन 5 लाख, इट इज़ 4.28 टाइम्स. Now see question number 76 beta. Calculate the amount of opening trade receivable and closing trade receivable from the following particular. Cost of revenue from operation is 9 lakh. Gross profit on revenue from operation is 25%. Cash revenue from operation is 20% of credit revenue from operation. Trade receivable turnover ratio 5 times given है. Closing trade receivable were 3 times than that of beginning. See, gross profit is 25% on revenue from operation. इफ़ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल्स टू 100 हमने एज्यूम कर लिया, चाहे आप इसको x भी एज्यूम कर सकते हैं. अगर रेवेन्यू परसेंटेज में इसलिए हम उसको 100 एज्यूम कर सकते हैं बेटा. इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100 है तो ग्रॉस प्रॉफिट उसका 25% है, इट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट 25 हो गया. और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दिए तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल्स टू 75. बिकॉज फॉर्मूला ये होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. 75 आ गया. अब अगर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 75 है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है आपका 100. इफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 9 लाख देन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विल बी 9 लाख इंटू 100 अपॉन 75. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल्स टू 12 लाख आ गया. टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. कैश रेवेन्यू गिवन है क्वेश्चन में 20% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू.
हमने क्रेडिट रेवेन्यू को एक्स एज्यूम कर लिया, तो कैश रेवेन्यू इज 20/100 इंटू एक्स, तो इट इज़ 2x/10. इट मीन्स 12 लाख टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. 12 लाख इज इक्वल्स टू कैश रेवेन्यू 2x/10 प्लस क्रेडिट रेवेन्यू x. तो 12 लाख इज इक्वल्स टू 12x/10. तो 12 लाख इंटू 10/12 इज इक्वल्स टू एक्स. तो एक्स क्रेडिट रेवेन्यू कितना आ गया आपका? 10 लाख आ गया. ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशियो में क्रेडिट रेवेन्यू अपॉन एवरेज ट्रेड रिसेबल फॉर्मूला है आपका. तो ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशियो 5 है, गिवन है. क्रेडिट रेवेन्यू अपॉन एवरेज ट्रेड रिसेबल 10 लाख अपॉन एवरेज ट्रेड रिसेबल नहीं पता था हमें. वी फाइंड आउट एवरेज ट्रेड रिसेबल, इट इज़ 2 लाख. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल लिया. नाउ सी हमें क्लोजिंग ट्रेड रिसेबल इज 3 टाइम्स दैट इज ओपनिंग ट्रेड रिसेबल. तो लेट ओपनिंग ट्रेड रिसेबल इज इक्वल्स टू एक्स. तो एवरेज ट्रेड रिसेबल क्या हो गया? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 लाख इज इक्वल्स टू एक्स प्लस, क्योंकि क्लोजिंग ट्रेड रिसेबल क्या है? 3 टाइम्स है, तो 3x हो गया अपॉन 2. तो 2 लाख इज इक्वल्स टू 4x अपॉन 2. एक्स इज इक्वल्स टू 1 लाख आ गया. यानी ओपनिंग ट्रेड रिसेबल 1 लाख, क्लोजिंग ट्रेड रिसेबल इज इक्वल्स टू 3x. 3 इंटू 1 लाख, इट इज़ 3 लाख. नाउ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का क्वेश्चन है बेटा. क्वेश्चन नंबर 83, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. इन्वेंट्री 6 लाख, ट्रेड रिसेबल 5 लाख, कैश 1 लाख, ट्रेड पेबल 2 लाख, बैंक ओवरड्राफ्ट 1,20,000, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 52,80,000. वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करना है आपको. करंट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़. तो करंट एसेट्स की वैल्यू गिवन है इन्वेंट्री, ट्रेड रिसेबल एंड कैश, तीनों को ऐड कर दिया तो 12 लाख इज करंट एसेट्स. करंट लाइबिलिटीज़ आर ट्रेड पेबल प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट, इट इज़ 3,20,000. तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, इट इज़ 8,80,000. तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल, इट इज़ 52,80,000 अपॉन 8,80,000, 6 टाइम्स. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कितना आ गया? 6 टाइम्स. बेटा ये आपका टर्नओवर रेशियोज कंप्लीट हो गए. टर्नओवर रेशियो इंपॉर्टेंट है, इसके सारे क्वेश्चंस को करके देखिएगा. वट एवर इज गिवन इन द असाइनमेंट उसे भी करिए. डू योर वर्क, कंप्लीट योर वर्क, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर प्री बोर्ड एग्जाम. थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे. कंप्लीट करिए सारा वर्क एंड अपना वर्क कंप्लीट करते रहिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर प्री बोर्ड एग्जाम. थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे.